میں نے اسے انکار کر دیا۔ مجھے ایک مسلمان سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں نے ہر رات جاب سے واپسی پر اسے اپنے راستے میں کھڑا پایا۔ ہر رات، ہر صبح وہ مجھے دیکھتا رہتا اور میں اس کے پاس سے گزر جاتی۔ وہ اتنا مستقل مزاج ہے کہ میرے انکار پر بھی میرے راستوں میں کھڑا رہتا ہے، میرے ساتھ بس میں سفر کرتا ہے، خریداری کے دوران میرے آس پاس رہتا ہے، اور پھر کتنے ہی مہینوں بعد جب میں نے اسے وہاں صرف ایک دن کھڑے نہیں پایا تو میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کم ہوتے ہوئے محسوس کی۔ اس کا وہاں کھڑے رہنا کیوں ضروری تھا، اور ایک اس کے وہاں نہ ہونے سے دنیا میں کچھ باقی کیوں نہ رہا۔ اور میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، خدا کی تلاش میں کہ وہ مجھے بتائے کہ کیا ایسا ہی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی اور رات صدیوں پر محیط ہو گئی۔ پلکوں کی جنبش کے سوا میرے وجود نے حرکت نہ کی۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہو گئی تھی، لیکن وہ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اب اگر وہ مجھے صبح و شام دیکھنے کو نہیں ملے گا تو میری بنائی پر اثر پڑے گا۔ اب اگر اس کا سایہ میرے پیچھے پیچھے نہ رہا تو میرا وجود بے سایہ ہو جائے گا۔ اور اس رات میں نے پہلی بار سوچا اسے ہاں کہہ دینے میں مجھے تعمل کیوں ہے۔ کیا میں مغرور ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، یا کوئی اور فرق غالب ہے؟ لیکن دو انسانوں کی پہلی شناخت تو انسان ہونا ہوتا ہے نا۔ اس رات صرف پلکوں کی جنبش پر اختیار نہ رکھتے ہوئے میں نے یہ فلسفہ گھڑا، یہ میری اپنی قابلیت تھی یا اس شخص کی قوت کہ میں نے ایسا فلسفہ خود کو سکھا دیا، یا وہ الزام ٹھیک ہے جو ایک جذبے پر لگایا جاتا ہے کہ محبت سب جائز کروا لیتی ہے۔ میں نے ولید کو خود پر جائز ہوتے دیکھا۔ میں نے یہ خود سے نہیں کیا، بس یہ ہو گیا۔ محبت دنیا میں سب سے بے اختیار جذبہ ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ آلیان نے مارکیٹ کی ڈائری کو دکھ و تیش سے بند کر دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کتنا مشکل تھا مارکیٹ کے لکھے کو پڑھنا، جو اس پر گزرا تھا اس سے پھر سے گزرنا، اور اپنی زندگی کو خوفناک حد تک مارکیٹ کی زندگی سے مماثل پانا۔ آلیہ نے کئی بار امرہ کو اپنے راستوں میں کھڑا دیکھا تھا۔ وہ ایسے ظاہر کرتا جیسے اسے دیکھا ہی نہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس شخص اور اس امرہ میں ایک جیسی خامیاں اور خوبیاں ہیں۔ پہلے جکڑ لینا، پھر جھٹک دینا، پہلے ہنسانا، پھر رلانا، پہلے اپنے ساتھ زندہ رکھنا، پھر اپنے بغیر مردہ کر جانا۔ یہ لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ برباد کر دینے والے لوگوں کی رمزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یہ سراب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگو، انہیں پالو، اور پھر یہ دلدل بن جاتے ہیں۔ ان میں دھنس کا دم توڑ دیا جائے، یہ یہی چاہتے ہیں۔ تو مارکیٹ کی زندگی میں آنے والا شخص اور اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی دونوں ایک جیسے ہیں۔ اپنی منتشر ذہنی حالت میں اس نے خود کو کئی بار یہ کہتے پایا، کسی ضروری کام کی طرح اس نے اسے خود کو بھولنے نہ دیا۔ امرہ پر ترس کھاؤ آلیان۔ سائی نے بھانپ لیا کہ وہ بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ سائی، تمہیں ہر وقت اس کا وکیل بننے رہنے کا شوق کیوں ہے؟ تم غلطی پر ہو، وکیل میں تمہارا ہوں۔ خود کو دیکھو آلیان بڑی، تم کسی کو دھوکہ دے رہی ہو۔ دھوکے سے ہی تو نکل آیا ہوں۔ یہ سال بھی گزر جائے گا، وہ چلی جائے گی تو چلی جائے۔ جب چلی جائے گی تب بھی اتنی ہی آسانی سے کہہ سکو گی بالکل۔ دیکھو وہ ایک مختلف ماحول سے آئی ہے۔ مارگریٹ کا شوہر بھی مختلف معاشرے سے آیا تھا۔ سب خود غرض اور بے حس لوگ ایک جیسے ماحول اور معاشرے سے آتے ہیں۔ اس کے خیالات کتنے واضح ہو گئے تھے۔ وہ بے حس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں ہوں۔ تمہیں اس پر اتنا غصہ ہے، یاد رکھنا غصہ اپنوں پر ہی ہوتا ہے۔ اپنا وہ ہوتا ہے سائی جو رحم دل ہوتا ہے۔ اور امرہ، ٹھیک ہے سنو امرہ کیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں۔ بے وقوف نہیں تھی۔ وہ مجھ سے دور کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے مجھے روک کر یہ کیوں نہیں کہا کہ تم ایک غیر مسلم عورت کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کی خبر نہیں، مجھے تم سے تعلق نہیں رکھنا۔ اگر ماما نے میری تربیت نہ کی ہوتی، اگر میں نے صبر کا درس نہ لیا ہوتا تو جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوتا؟ میں ذہنی انتشار کا شکار ہو کر پاگل ہو جاتا۔ مجھے بے وقوف بنا کر میرے ساتھ
ऐसा सलूक किया गया। मैं उस पर भड़का नहीं, उस पर चिल्लाया नहीं और उसे ये बताया नहीं कि वो किस कदर खुदगर्ज है। मैं ये नहीं भूल सकता कि सब जानते बुझते वो कैसे मेरे साथ रही, जैसे मेरा दिल तोड़ना उसका मकसद था। क्या मोहब्बत और दोस्ती में फर्क नजर नहीं आता? नजर आता है, साफ नजर आता है। और अगर दोस्ती ही थी तो उसी दोस्ती का लिहाज रखकर वो मेरी कुछ तो इज्जत करती। वीरा के सामने उसने मेरी माँ की कैसे बेइज्जती की। एहतराम वो होता है जो तन्हाई में भी किया जाए, जो दिलो दिमाग की सोचों में भी किया जाए। साई, अगर मेरी माँ से मोहब्बत करने वाला, धुतकार कर उसे अपनी जिंदगी से अलग करने वाला एक सिर्फ एहतराम और इज्जत का रास्ता अपना लेता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। अमरहा को एक खिलौना चाहिए था, दोस्त। यूनिवर्सिटी का सबसे मोस्ट वांटेड स्टूडेंट उसका दोस्त है, उसके साथ है, उसके पास रहता है, उस पर फिदा है। बस यही हैसियत थी उसके नज़दीक मेरी। वो आज भी मेरे पास आती है कि मैं फिर से उसका दोस्त बन जाऊं। जब तक उसे सबूत नहीं मिल गया उसने मुझे लामज़हब समझा। मुझे लेकर वो एक फॉर्म भरती रही और खानों में टिक क्रॉस लगाती रही। इतनी हिम्मत तो मेरी माँ ने भी की थी। साई, दो इंसानों में पहली और ज़रूरी मुश्तरक तो उसने भी ढूंढ निकाली थी। मैं किस बुलंदी से ज़मीन बोझ हुआ था तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारी माँ मार्केट नहीं रही और तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर नहीं गया। साई को दुख हुआ, उसे से इट ऑल नहीं होना चाहिए था। ऐसे दुख सुनकर वो कैसे सुकून से सो पाया करेगा। आलियान की आंखों में नमी थी और वो नमू से अपनी जड़ किसी सूखे शजर की तरह कटवा चुका था। मैं कई हिस्सों में बटा हुआ हूँ, मुझे खुद को इकट्ठा कर लेने दो, फैसला कर लेने दो मुझे। फैसला दिमाग से करने जा रहे हो? साई ने नरमी से पूछा। नहीं, तजर्बात से, अपनी माँ के। तो तुम मुझसे मोहब्बत करना छोड़ चुके हो? ये सवाल करते साई का दिल भर आया। मैं इस बारे में सोचना छोड़ चुका हूँ। तुम अपनी माँ की और अपनी जिंदगी का मवाजना कर रहे हो और गलत कर रहे हो। जब ठीक कर रहा था तब भी गलत ही हुआ था। तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ। काश मैं तुम्हें वो डायरी दे सकता जो मेरे लिए ओक हाउस में एक स्टूडेंट छोड़ गया था। उसने एक जगह लिखा कि अब वो इस चीज़ की कदर जान गया है जो उसके पास नहीं रही। मेरे हाथ भी खाली हैं, कुछ नहीं है इनमें। और वो कहता है जिंदगी वजाहत से मेरे सामने आ खड़ी हुई है। मेरे लिए ये खोखली है। जिंदगी की हकीकत मुझ पर खुल चुकी है और ये काम अमरहा ने किया। मैंने अपने जज्बे को सुलाए रखा और उसे बता नहीं सका। अब वो सो चुकी है और मैं खुद को बताता फिरता हूँ। फिर वो कुछ यूँ खुद को जाहिर करता है। मैं उसे बता चुका था साई, बता चुका था। आलियान चिल्ला उठा और मैंने ये जान लिया मोहब्बत के वाक़या होने से ज़्यादा उसके क़याम पर कायम रहना ज़रूरी है। और फिर वो फैसला कर लेता है आखिरकार। साई, आलियान ने साई को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ा। क्या तुम ससकती बिलकती तड़पती मार्गरेट को भी ये मशवरा देती? बोलो, क्या तुम उससे भी यही फलसफे सुनाती? मार्गरेट की डायरियाँ भी ले जाओ और फिर मशवरे देना। मैं देखूंगा साई, तुम कितने इंसान दोस्त साबित हो सकते हो, मैं देखूंगा। और साई इस बात पर चुप हो गया। उसके वजूद में सनसनाहट होने लगी थी। मौसम फिर से सर्द होने लगा था और इतना गर्म था ही कब के सर्द होने में वक्त लेता। चलते चलते बारिश होने लगती और चलने के दौरान ही रुक भी जाती। फ्रेशर्स के बारे में आए दिन कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता रहता। वो फ्रेशर्स को हसरत से देखती, काश वो भी उन्हीं में से एक होती और वो सब ना हुआ होता जो हो चुका है। वो अब आलियान से मिलती और इस बार ज़्यादा समझदारी का सबूत देती और फिर उसे सड़क पर अकेला न चलना पड़ता। मौसम के बदलने पर उसे उदासी न होती। किसी ने फुर्सत निकाल कर उसे बददुआ दी थी कि वो इस हालत में आ चुकी थी। आलियान उसके साथ ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगा था। उसमें तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही थी। हर दिन वो पहले से ज़्यादा सख्त और बदला हुआ लगता था। जिंदगी की बदतरीन सूरत हाल जानते हो कौन सी होती है साई? दो प्यारों में से एक को चुनना और दो में से एक को छोड़ देना। साई ने गहरा सांस लिया। हाँ, और इससे भी बदतरीन वो हो जाती है जिसमें जिसे चुना हो
اس کے ساتھ خوش نہ رہ پانا۔ سائی نے اس کی شکست خوردگی دیکھی۔ اپنے بارے میں سوچ سوچ کر تھک چکی ہوں سائی، کیا شخصیت ہے میری، ساری زندگی روتی رہی، اتنی ہمت نہ کر سکی کہ اپنے ماحول کے خلاف ڈٹ جاتی، اسے بدل دیتی، احساس کمتری کا شکار رہی۔ میرے ماضی میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں کسی کو خوش رکھ سکتی ہوں نہ خود کو۔ میری ایک دوست کہتی ہے کہ دوسروں سے پہلے اپنا بننا ضروری ہے۔ میں کبھی اپنی نہیں بنی، بس ہر وقت بیچارے بنے رہنا۔ کیا ہوں میں؟ کمزور ہوں، جھوٹی، خود غرض، بے حس؟ کیا ہے میری ذات میں جو قابل تعریف ہو؟ تمہارے ہاتھ میں یہ سوچ ہے کہ تم کیا ہو۔ جب انسان خود سے سوالات پوچھنے لگتا ہے تو وہ خود کو تبدیلی، بلندی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ کیسی بلندی سائی؟ میں نے علیان کے ساتھ کیا کیا؟ ویرا کے سامنے میری معاشرے کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ میں نے علیان کی کھل کر بے عزتی کر دی۔ الفاظ تو وہی ہوتے ہیں نا جن پر احترام کی لگامیں ہوں، ورنہ تو سب حد تک ہے، انداز، آواز۔ اگر میں علیان کی جگہ ہوتی تو ساری عمر امرہ کی شکل نہ دیکھتی، میں اس جگہ کو ہی چھوڑ دیتی جہاں امرہ ہوتی۔ میرے خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں سالوں نہیں ملی، بات نہیں کی، سلام نہیں کیا، انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرا دل دکھایا تھا، میری تذلیل کی تھی۔ میری انتہا پسندی دیکھو کہ کالج کی میری دوست جو میرے بارے میں سب جانتی تھی، ایک دن میرے ساتھ چلتے چلتے گر گئی اور مذاقاً کہنے لگی، تمہارے ساتھ چل رہی تھی تو گرنا تو تھا ہی۔ اور پھر اس کے لاکھ منانے پر بھی میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے اس سے صرف افسوس کیا، جبکہ اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ بس یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی، میں بس علیان کے کھردرے سخت رویے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں اس تکلیف کو لے کر بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے اپنی کتنی فکر رہتی ہے۔ میرا اور علیان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جانتے ہو، سادھنا کو علیان کے لیے سب سے زیادہ پیسے وہ جمع کر کے دیتا ہے۔ سادھنا سے زیادہ اسے یاد رہتا ہے کہ علیان کی سرجری کب ہونی ہے۔ وہ بھڑکتا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، وہ کتنا ذہین ہے، جتاتا نہیں ہے۔ اس کے خیالات کس قدر عظیم ہیں، وہ سکھاتا ہے، اتراتا نہیں ہے۔ یہ سب تمہیں اب معلوم ہوا ہے امرہ؟ سائی اتنا افسردہ ہو گیا کہ امرہ جان ہی نہیں سکتی تھی۔ معلوم تو تھا، قدر نہیں تھی سائی۔ کہا نا مجھے افسوس ہے خود پر، مجھ میں کچھ قابل ذکر نہیں ہے۔ مجھے ویرا اچھی نہیں لگتی، مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس سے کام نکلوا لیتی ہوں، اس سے مسکرا کر بات کر لیتی ہوں اور منہ پھیر کر ناپسندیدگی سے اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ اس سے معلوم ہو کہ میں اس کے بارے میں کیسے سوچتی ہوں تو اسے بھی دکھ ہو۔ وہ مجھ سے ایک ہی سوال پوچھے، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا برا کیا ہے؟ میں سب کے ساتھ برا کرتی ہوں اور بیچاری بھی خود ہی بن جاتی ہوں۔ یہ منافقت اور سنگ دلی ہے۔ تم ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہو، لیکن امرہ، انسان جب اپنا احتساب کرتا ہے تو وہ وقت بہت خاص ہوتا ہے۔ انسان اپنا احتساب تب ہی کیوں کرتا ہے جب وہ سب کھو چکا ہوتا ہے۔ تم پاکستان کیوں نہیں جاتی؟ اپنے گھر والوں سے ملو، انہیں نئے ماحول کی اچھی اچھی باتیں بتاؤ۔ لوگوں سے جب تک ملا نہ جائے وہ برے اور عجیب ہی لگتے ہیں۔ تم ذہنی طور پر اچھا محسوس کرو گی۔ کیا واقعی؟ ہاں، یونی میں ایک لڑکی جب میرے قریب سے گزرتی، اسے دیکھ کر مجھے لگتا کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ایک لمبا عرصہ ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اس کی طرف سے ایک رکا دیا جس پر لکھا تھا، تم مجھے پسند نہیں کرتے، پر کیوں؟ فاصلے ابہام پیدا کرتے ہیں اور ابہام شیطان کا پہلا ہتھیار ہے، کیونکہ یہ ہر مثبت جذبے اور سوچ پر حملہ آور ہو کر اسے جیت کر ڈالتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سائی، لیکن علیان کیوں اس ابہام کے زیر اثر آ رہا ہے؟ تم جانتی ہو امرہ، میں کسی کی بتائی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی مشورہ دو۔ سائی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے ایسا کیا مشورہ دے سکتا تھا جو سب ٹھیک کر سکتا؟ اس کے پاس بلا شبہ ایسے لفظ نہ تھے، نہ ایسا جادو۔ بہت دیر نہیں ہونی چاہیے کہ انتظار پر فرمان غالب آ جائے۔
और फराह को रुखसत होने की इजाज़त न मिली। साई हौले से बड़बड़ाया। अमरा ने सुन लिया। उसे याद आ रहा था कि ये जुमला उसने कहीं पढ़ा था। कहाँ? हाँ, ओक हाउस से मिलने वाली डायरी में। उस डायरी के जुमले का इस्तेमाल में लाया जाना अमरा को नहस लगा। ये साई ने क्या किया? उसे ये नहीं कहना चाहिए था। वीरा उसे कॉफ़ी के लिए उस कैफ़े लेकर आई थी जो बकौल उसने मैनचेस्टर में दरियाफ्त कर डाला था। वो हर बार उसे इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि उसे एहसास था कि इनकार कितना भी ठीक हो, तकलीफ दह होता है। कॉफ़ी पीने के बाद उन्होंने पुल पर चहलकदमी शुरू कर दी। शाम रात के साथ जा मिलने वाली थी। बारिश फुलवार की सूरत बरस रही थी और वीरा नन्हे बच्चों की तरह सर उठा कर आसमान को देख रही थी। साथ उसे रूस के खानों के बारे में बता रही थी। क्रिसमस की छुट्टियों में तो रूस चलोगे ना? नहीं वीरा, मैं मामा के साथ जाना चाहता हूँ। हम गर्म इलाकों की तरफ सफ़र करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या वो रूस नहीं आ सकती? बहुत ज़्यादा ठंड उनके लिए ठीक नहीं है। फिर डिग्री के बाद? अभी तो बहुत वक्त है। तुम बहुत वक्त पहले ही मुझे हाँ कह दो ना। वो खामोश वीरा के बालों पर गिरने वाले फुहार को देख रहा था। वो कहीं और था। मैं लाहौर आना चाहता हूँ। क्यों ना आऊँ? तुमने तो कहा था अभी तुम एशिया के सफ़र का इरादा नहीं रखते। मैं एशिया के सफ़र का इरादा अभी भी नहीं रखता। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर एशिया में ही है। लाहौर एशिया में नहीं, मेरी टॉप लिस्ट में है जहाँ पहली फ़्लाइट से जाया जाए। अच्छा, देख लो, वैसे लाहौर में मच्छर भी होते हैं। तुम मुझे मच्छरों से डरा रही हो? हाँ, तुम यही कर रही हो। बिल्कुल नहीं, सिर्फ खबरदार कर रही हूँ। तुमने डेंगू का नाम सुना है? उसके काटते ही इंसान फौरन से पहले मर जाता है, बिल्कुल झटपट। तो लाहौर में ऐसा फौरी मार देने वाला डेंगू है, वरना 2-3 घंटे तो दुनिया का हर डेंगू मच्छर देता है मरने के लिए। हमारे पास VIP डेंगू है। अपने रिस्क पर लाहौर आना, मुझसे शिकायत न करना। क्या वो लाहौर वालों को नहीं काटता? नहीं, यही तो उसकी खसूसियत है। वो गैर मुल्कियों पर हमलावर होता है। जब मैं लाहौर जाऊंगा तो क्या मैं भी गैर मुल्की होऊंगा उसके लिए? डेंगू के लिए नहीं, लाहौर के लिए। रूस की बर्फ को जानते हो ना? फिर न कहना बताया नहीं। हाँ, उसके काटने से इंसान मर जाता है। बर्फ काटती नहीं आलियान। हल्की सी जुर्जरी का वो शिकार हुआ। वो वीरा थी और हंसती जा रही थी। मैंने तो वलीद को इतना लंबा अरसा सुना भी नहीं था। मिट्टी से रेत की तरह फिसल जाने वाली जिंदगी के सिर्फ चंद साल ही, और इन चंद सालों में ही उसने मुझे अपने सिवा सबके लिए बहरा कर दिया। और दोस्तों के लिए गूंगी तो मैं तभी हो गई थी जब उससे हम कलाम होना शुरू हुई थी। ये वो इब्तिदा थी जो उसके जाने के बाद इंतहा को पहुंची। मैं आलियान को देखती हूँ तो सोचती हूँ इतनी गलतियाँ कर चुकी हूँ और ना करूँ, लेकिन मैं फिर भी गलती कर जाती हूँ। मैं वलीद के लिए आंसू बहाने लगती हूँ। मैं ये गलती अपनी हर सांस के साथ करती हूँ। अगर दुनिया में मुझे किसी को नसीहत करने का मौका दिया जाए तो मैं नसीहत करना चाहूँगी कि खुद को ख़त्म कर देने के हज़ारों तरीक़ों में से मोहब्बत को सबसे आखिर पर भी न रखें। जिंदा दरगोर होने के लिए किसी और जज्बे का इंतखाब करें। मुझे इस एक कमरे के घर में वो हर वक्त चलता फिरता हुआ नजर आता है। मैं पैदाइशी अंधी हो जाती, लेकिन ऐसी अंधी ना होती कि मुझे मेरा बेटा नजर ना आए, लेकिन उसे धुतकार देने वाला शख्स हर जगह नजर आए। तो क्या मुझे ऐसी बेख्तियारी पर कोड़े नहीं बरसाने चाहिए? आलियान ने अपनी हथेली पर बारिश की फुहार समेटी। ठीक है, हम ज़रूर चलेंगे वीरा। अपनी बेख्तियारी को उसने भी माफ़ न किया। चंद दिनों बाद वो रात को शटलकॉक आया और मामा महर की गोद में सर रख कर लेटा रहा। वो छत को देख रहा था, फिर वो दीवार पर टंगी तस्वीर देखने लगा। फिर उसकी नज़रें खिड़की से बाहर भटकने लगी। क्या तलाश कर रहे हो? आपको कुछ बना कर खिलाऊं? साई ठीक कहता है, वो बात बदलने में माहिर हो चुका है। रात के इस वक्त क्या वक्त हुआ है? तुम्हें आए आधा घंटा गुजर चुका है और तुम ऐसे खामोश हो कि मुझे लग रहा है कि तुमने कई दिनों से किसी से भी बात नहीं की।
एन बता रही थी कि यूनी में भी तुम ऐसे ही रहते हो। मुंह खोलो और मुझे अपनी जुबान दिखाओ, इसमें ज़रूर कोई मसला होगा। उसने फर्मा बरदारी से मुंह खोलकर जबान दिखा दी। आप खिड़की के पास जाओ और ज़ोर से चिल्लाओ, मुझे मालूम हो कि तुम में कितनी कुव्वत बाकी है। वो खिड़की के पास आया। बाहर अमरहा खड़ी उस खिड़की की तरफ देख रही थी। बज़ाहिर उसके हाथ में फ़ोन था और वह ठंड में टहल रही थी। चिल्लाना पड़ना, आ जाओ। वो वापस आकर बैठ गया। एन को आपने मेरे पीछे जासूसी पर लगा रखा है। उसे छोड़ो, ये बताओ कि इतने मशीनी से क्यों हो रहे हो? तुम में जो खासी नरमी का अंसर हुआ करता है वो कहाँ है? क्या मेरा रवैया बुरा है? बुरा नहीं, अजीब, सहमा देने वाला। क्या यूनी में फिर किसी लड़की ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है जिसे इनकार करके तुम्हें उसका दिल तोड़ना है और तुम उसके लिए हसास हो रहे हो? नहीं, उसने हंसने की कोशिश की। तो क्या तुमने किसी को प्रपोज किया है और उसने इनकार करके तुमसे उन 8-10 लड़कियों के बदले ले लिए हैं? क्रिसमस की छुट्टियों में मेरे साथ चलेंगी मामा? मुझे कहाँ कहाँ संभालते फिरोगे? काल, तुम, वीरा, अमरहा सब मिलकर जाना। आप हर बार इनकार कर देती हैं। इनकार नहीं करती, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्या तुम मुझे स्वीडन लेकर जाना चाहते हो? हरगिज नहीं, मुझे स्वीडन नहीं पसंद। तुम कितना बदल रहे हो आलियान। जब तुम वापस आए थे तो तुमने कहा था। वो बयान गैर हकीकी था मामा। हकीकत ये है कि अब मुझे कभी स्वीडन नहीं जाना। तुम्हें जल्द शादी कर लेनी चाहिए बस, इससे पहले कि तुम्हें सब गैर हकीकी लगने लगे। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ मामा, फिक्र न करें, मैं अब नॉर्मल नहीं होगा। तुम्हें अमरहा कैसी लगती है? आपको वीरा कैसी लगती है? उसने फौरन कहा, वीरा। लेडी महर को कुछ ही वक्त लगा सब समझने में। जी, वो एक समझदार लड़की है। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो इंसानों की इज्जत करना जानती है। उसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि वो इंसानी नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। मैंने उसे बेगर्ज और पुरखलूस पाया है। वो हर एक की मदद के लिए तैयार रहती है। वो हसद और रश से पाक है। उसमें बहुत सी खूबियाँ हैं मामा। तुमने वीरा की बात एकदम से ऐसे की जैसे उसकी वकालत कर रहे हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि ये वकालत तुमने मेरे लिए की या खुद अपने लिए। उस आखिरी बात ने आलियान के चेहरे के सब कुदरती रंग निचोड़ लिए। आलियान, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुझे नापसंद हो, क्योंकि मैं किसी न किसी तरह से काबिल नफरत इंसानों से भी मोहब्बत करने का रास्ता निकाल लेती हूँ और मुझ पर यह गला नहीं गुजरता। मैं किसी से नफरत नहीं करता मामा, सिवाय एक के। हम कितनों से मोहब्बत करने के काबिल हो चुके हैं। इससे ज़्यादा अहम ये है कि हम कितनों से नफरत कर रहे हैं। इंसान मोहब्बत में कोरा हो ना हो नफरत में, कोरा ज़रूर होना चाहिए। कोई नुक्ता, कोई निशान नहीं होना चाहिए उस जज्बे के नाम। मैं उस शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं मार्केट नहीं बन सकता। मैं सिर्फ उसी की बात तो नहीं कर रही। उन्होंने बहुत संजीदगी से उसे देखा। फिर मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। मुझे डर था आलियान कि एक दिन तुम ज़रूर मार्केट को लेकर बहुत सोचा करोगे। मामा के बारे में सोचना बुरा है क्या? मार्केट के बारे में सोचना नहीं, बस उसके साथ जो हुआ उसके बारे में सोचना। तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंख की पुतली की हरकत भी पहचानती हूँ मैं। उन आंखों के रंग और चमक कहाँ गुम कर आए हो ये पूछा नहीं तुमसे, अभी भी नहीं पूछूंगी। सिर्फ इतना कहूँगी कि पुरसुकून रहो, जल्दबाज मत बनो, खुद को वक्त दो, ठहराओ खुद को, फैसले करो, लेकिन खुद को बेहिस बना कर नहीं। मैं जल्दबाज तो नहीं मामा। हाँ, नहीं हो, लेकिन बाज मामलात में हो जाते हो और हमें खुद को भी पता नहीं चलता। वो खामोश हो गया। एक जुमला उसके जहन में बजने लगा। पहले उसने मुझे ये बताया कि मैं उसके लिए किस कदर ज़रूरी हूँ, फिर उसने ये साबित कर दिखाया कि मैं कितनी गैर ज़रूरी थी। दादा का उजाड़ प्लॉट बिक गया था और उन्होंने लेडी महर से कर्ज ली रकम वापस करने के लिए उसे दे दी थी और कुछ मजीद रकम भी, ताकि वो दाइम को दे सके। दाइम को पैसे मैं दे दूंगी। अब जब पैसे हैं तो उसे दे दो अमरहा।
तुम सिर्फ दिल लगा कर पढ़ो, बेशक जॉब छोड़ दो। नहीं दादा, जो काम मैंने अपने जिम्मे लिए हैं मैं वो खुद ही करूँगी। तुम्हारा आखिरी साल है, मेरा मशवरा है कि जॉब छोड़ कर पढ़ो। तुम्हें अब अखराजात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब पैसे तुम्हारे और दानिया के लिए रखे हैं। सब दानिया के लिए रखते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब तुम्हें क्या चाहिए अमरा? तुम्हें बाहर आना था, तुम आ गई। अब से पहले तक तुम बहुत खुश खुश मुझसे सारी बातें किया करती थी। पिछले दिनों तुम इसलिए इतना उदास नहीं कि तुम्हारे बहुत से यूनिस फेलोज चले गए। अब नई वजह कौन सी है उदासी की, मुझे बताओ। तुम्हारा आखिरी साल है यूनि में, दिल लगा कर सिर्फ पढ़ो। याद है मुझे, ये मेरा आखिरी साल है। लगता है दादा जिंदगी का ही आखिरी साल है। अब ऐसी बातें करने लगी हो। मालूम नहीं दादा, लेकिन इससे आगे मुझे जिंदगी नजर नहीं आती। सब खत्म हुआ सा लगता है। तुम मुझे अपनी तरफ से मजीद फिक्रमंद कर रही हो अमरा। दादा, कभी मैं खुश होती हूँ तो फौरन गमज़दा हो जाती हूँ। जिंदगी अच्छी लगती है तो फौरन बुरी भी लगने लगती है। भागते भागते फिर चलने की हिम्मत रहती है ना चाह। मेरी एक क्लास फेलो कहती है कि ऐसी कैफियत खतरनाक होती हैं। आप किसी किनारे खड़े होते हैं, उस तरफ आते हैं ना इस तरफ जाते हैं। तुम्हें किस तरफ जाना है वो बताओ अमरा। दादा की आवाज़ खुरदरी हो गई। हसब नसब नहीं है मेरे पास, कैसे बताऊं? सर पर लटकती तलवार को उसने गिर जाने दिया। दोनों के दरमियान सकूत रहा। अगली बात करने में दादा ने काफी वक्त लिया। कौन है वो? उनके अंदाज से हौसला अफजाई ना पैर थी। दोस्त कहते उसकी आवाज़ इंसानी आवाज़ की रुत पर से परे की हो गई। खराबी दोस्ती से ही शुरू होती है, नहीं खराबी घुटन से शुरू होती है। अगली बात करने में दादा ने फिर वक्त लिया। तो तुमने फैसला कर लिया है? मुझसे ये न पूछे, जो मैं आसानी से बता रही हूँ वो मेरे लिए इतना आसान नहीं रहा। मेरे समाज पर ये जितना गरा गुजरा है तुम्हारी ज़बान पर नहीं गुजरा होगा। तुम पाकिस्तान आओगी तो ये बातें होंगी। वो तलखी से हंसी। दादा, आप चाहते हैं कि मैं बस पाकिस्तान आ जाऊं? आपकी एहतियात अच्छी है कि इस तरह दूर बैठे बातें करने से बात पड़ जाएगी। मैं आपके हाथ से निकल जाऊंगी। मैं जो यहाँ इतनी दूर अकेली हूँ कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर यहीं की यहीं रह गई तो आप क्या कर लेंगे? दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी और आप खामोश हैं। तुम भी खामोश रहो अमरा। मैं जान गया हूँ कि इसमें ज़रूर ऐसी कोई खराबी है कि इसके बारे में बात करते तुम्हारा अंदाज ऐसा है। वो एक ईसाई औरत का बेटा है और मैं उसके बारे में नहीं जानती। वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान है। बल्कि अमरा, मैं पाकिस्तान में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें पाकिस्तान आना है। और दादा ने भी वही अंदाज अपना लिया जिसकी वो तवक्का कर रही थी। वो खामोश हुई। उसने महसूस किया कि वो कई घंटे बुत बनी बैठी तो रह सकती है, लेकिन दादा के इस अंदाज के बाद बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो दादा को बताना चाहती थी कि उसने किसी की पलकों से अफशां चुन ली है। वो जो 4 कदम उससे दूर जाती थी और 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाती फिर पलट जाती थी, वो अबैन उसके सामने जा खड़ी हुई है। और वो दादा को ये भी बताना चाहती थी कि उनका इस पर और खुद का उस पर कोई इख्तियार नहीं रहा, और ये भी कि अब अगर वो पलटती तो पत्थर की बन जाएगी। ना वो उनके काम की रहेगी ना अपने। उसने इतना सब जान लिया है तो ऐसे ही दादा से बात की है ना। अमरा, मैं पाकिस्तान में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दादा को फिर से कहना पड़ा। उससे दादा के अंदाज पर गुस्सा आ गया, दुख भी हुआ। उसका दिल चाहा जवाब दिए बगैर लॉग ऑफ हो जाए, लेकिन वो भड़क कर ये कहने से खुद को रोक नहीं सकी। आप चाहते हैं मैं खुद पर जिंदगी हराम कर लूं, उस दरवाजे पर दस्तक दूं जो सिर्फ मरने वालों के लिए खुलता है? मरने की बात कर रही हो अमरा। फिर ये भी याद रखना, बूढ़ा पर मौत बिना किसी तरद्दुद के जल्द मेहरबान होती है। अमरा जहाँ की तहाँ रह गई। दादा चले गए। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? साधना ने कमरे के आकर से गुजरते उसे देखा तो अंदर आ गई। जिंदगी में कौन सा मुकाम ऐसा होता है साधना के लगने लगता है कि बस अब जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है।
जब हम कुछ ऐसा कर गुजरें जो हमें नहीं करना चाहिए। साधना कुछ कुछ समझ रही थी। ऐसा क्या? मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैंने अपने लिए महसूस किया था। आर्यन के पापा से पसंद की शादी की थी। हम दो मुख्तलिफ जातों से थे। मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। फिर हमने कुछ शादी कर ली और जब हमें आर्यन की बीमारी के बारे में मालूम हुआ तो मुझे लगा मुझे मेरे माता पिता की बदुआ लगी है। मैं उनसे पहले ही माफ़ी मांग चुकी थी। वो मुझे माफ़ कर चुके थे। लेकिन मेरी माँ ने एक बात कही थी। वो बोली, तुमने तो अपनी खुशी जी ली और अब हमें अपना दुख मरण समय तक काटना है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, बस समाज में सर उठाकर चलना था। तुमने हमारा सर ही काट डाला। धन दौलत किस्मत से, मान सम्मान समाज से। गलत वो नहीं थे, गलत मैं भी नहीं थी। न जाने क्यों पर मुझे ऐसा लगता है अमरा के माँ बाप और औलाद अगर आमने सामने हो और दोनों ही गलत हो और दोनों ही ठीक, तो भगवान उन दो में से माँ बाप का साथ देता है, क्योंकि जो मान सम्मान उनका होता है वो हमारा नहीं होता। उस वक्त मैंने सोचा था मेरे पास रमेश ना होता, आर्यन भी ना होता, लेकिन मेरे माता पिता के पास उनका मान सम्मान होता। अमरा पर दुख की नई बंदिशें खुली। अगले दिनों दादा ने उससे बातचीत ही बंद कर दी। वो कितने ही फ़ोन कॉल्स करती, वो फ़ोन ना उठाते, लॉगिन ना होते। ये उनकी नाराज़गी का अमली सबूत था। सिर्फ अभी बात करने पर अमरा को ऐसी सूरत हाल का सामना था। उसने फैसला सुना दिया था वो जान देकर सबूत देंगे कि देखो। तो जिद्दियों में से उस बुढ़े की जिद जीत गई। दानिया ने उससे बात की। क्या कहा है तुमने दादा से ऐसा? वो तो किसी से बात ही नहीं कर रहे। मैंने उनसे पैसे लेने से इनकार किया था। अब वहाँ जाकर तुम इतनी बड़ी हो गई अमरा कि दादा को इनकार करने लगी हो। तुम्हारी तो जान है दादा में, है ना? दानिया तंज कर रही थी। ये बात उसे थप्पड़ की तरह लगी। वो ऐलान किया करती थी कि दादा उसकी जान है, तो अब उस जान का ख्याल क्यों नहीं रहा उसे? वो उससे जज्बाती ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, बस पुराने वक्तों के आदमी थे तो इतनी बड़ी बात संभाल नहीं सके। ईसाई माँ, लापता बाप, घर ना खानदान, नाम ना निशान। वो अपने पैगामात को किस दिल से आर्यन को देती जो कई रातों से वो लिख रही थी। वो दादा की जान पर रहम करती तो अपनी जान का क्या करती? दादा से बात करने से पहले ही तो उसने उन पैगामात को आर्यन को देने की कोशिश की थी और अच्छा ही हुआ उसने उन्हें नहीं लिया। ये तुम्हारे लिए चंद पैगामात मैंने बहुत जुर्रत से लिखे हैं, प्लीज़ इन्हें पढ़ लो। इन्हें भी सेफ रूम में जाकर लगा दो। दुनिया दिखावे के लिए नहीं है ये आर्यन, दुनिया दिखावे के लिए नहीं है ये आर्यन। इनमें जो लिखा है वो मैं हॉट रॉक में सुन चुका हूँ। इनमें जो लिखा है वो सुना गया है न कहा। अमरा, अब तुम्हें जो कहना है वो सुनने के लिए मैं खुद को मौजूद नहीं पाता। तुम किस कदर जिद्दी हो आर्यन। हाँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। करता था और बकवास कर रहा था। झूठ बोल रहे हो ना तुम। झूठ। ऐसी ही बात थी तो साई के मुंह से पॉल के हमले का सुनकर तुम अपसेट क्यों हो गए थे? पॉल मुझ पर दोबारा हमला ना करते तुम स्टोर से घर तक मुझे छोड़ने क्यों आते रहे थे? राफेल को तुमने झील में धक्का दे दिया क्योंकि वो बार बार मुझे तंग कर रहा था। कार को तुमने फायर करके गिराया था कि मैं रेस जीत लूं। इतने सारे सच हैं और तुम झूठ बोल रही हो। तुम कुछ फहमी में मुब्तला हो अमरा। कार पर फायर करने के लिए मुझे वीरा ने कहा था। वो जानती थी कि अगर तुम हार गई तो दोबारा कभी किसी से मुकाबला नहीं कर सकोगी। वो हर हाल में तुम्हें जीता हुआ देखना चाहती थी। कार के साथ कोई भी ये करने के लिए तैयार नहीं था तो मैंने कर दिया, सिर्फ वीरा के लिए। सिर्फ वीरा के लिए। अमरा के कानों में साई होने लगी। तुमने कभी ये गौर ही नहीं किया कि वो दूसरे तुम्हारे लिए क्या कुछ करते हैं। उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है। तुम्हें सिर्फ अपनी नादानी की फिक्र है। पॉल ने तुम पर हमला किया, मुझे ये जान के दुख हुआ। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मुझे दुख होता। कार्ल ने खास जाकर पॉल को समझाया, यानी उसे भी दुख हुआ। ऐसा होना नॉर्मल है। और जोए पैटरसन के कहने पर हम तीन लोग तुम्हें घर तक छोड़ते रहे ताकि
पॉल दोबारा ऐसी हरकत ना करे। खुद जे पैटरसन कितनी ही रातें की ड्यूटी देता रहा। ये मेरी ड्यूटी थी अमरहा, और राफेल को सिर्फ इसलिए धक्का दिया क्योंकि वो प्रैंक का मास्टरमाइंड था। उसने मामा को उदास कर दिया था, शार्लेट को दुखी कर दिया था। ये सब झूठ है आलियान, ये सब तुम खुद करना चाहते थे। जो मैं खुद करना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। जिनसे एक बार मोहब्बत की जाती है उनसे नफरत करने का गुनाह नहीं करना चाहिए। जिनसे एक बार धुतकार मिले उनके पास पलट कर जाने का जुर्म नहीं करना चाहिए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती परेड में तुम्हारे पीछे आना था। मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ अमरहा। तुम्हें क्या पता कि मैं किस किस का खिलौना हूँ। वो सोच कर रह गई और कह न सकी। यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है, किसी को भी जाकर दोस्त बना लो। उसका अंदाज कभी भी ऐसे नहीं हुआ था जैसा अब हो गया था। अमरहा उसकी तरफ देखती रह गई। दोस्त? हाँ, वो दोस्ती ही तो कर रही थी तब भी अब भी। ठीक है, वो दादा से बात करेगी। उसने अपनी और उसकी आखिरी मुलाकात में सोचा था और वो बात कर चुकी थी, और दादा के ऐसे नाराज होने पर सोच रही थी कि अभी वक्त उसके हाथ में है। वो दादा से फिर बात करेगी। वक्त उसके हाथ में है, ये उसका अपना ख्याल था, क्योंकि बर्निंग मैन तो जलने के लिए तैयार किया जा चुका है। वो पूरे का पूरा जल जाएगा। आग की लपेटें उसमें से उठेंगी और वो देखती रह जाएगी। वो जल कर खत्म हो जाएगा। उसे जलने से कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।